student. Good morning to all of you. I hope you all are fine. I'm also fine. Welcome to all of you in SB Gun Dipakshi Biology. In previous classes, we are study about what is the nutrition and what is the mode of nutrition, how many mode of nutrition, nutrition, heterotrophic nutrition, and how many type of heterotrophic nutrition, autotrophic nutrition, and what is the nutrition in plant and animals. Now, today's we are study about what is respiration and what is the respiration in plant and what is the respiration in animals. Okay, animals. Now, then my topic is today's topic is respiration. Let us start. What is the respiration? रेस्पिरेशन मैक्सिमम लोग ये समझते हैं कि सांस लेने की प्रक्रिया को, इस मीन्स कि जिसे हम ब्रीदिंग कहते हैं. ब्रीदिंग मीन्स क्या? व्हाट इज द ब्रीदिंग? इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. ओके, इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2 एंड इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब इनहेलेशन क्या है और एक्सहेलेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक इनहेल oxygen is called inhalation and the process of exhale CO2 carbon dioxide is called exhalation and the process of inhalation and exhalation is called respiration. Breathing is called breathing. And breathing is not only respiration. Respiration is also the release of energy, production of energy. The process in which cells of an organism obtain energy by the combination of glucose and oxygen is called respiration, which is include breathing. Okay, in the presence of breathing is also involved in this. The process, let us see the process in which cells of an organism obtain energy by the combination of oxygen and glucose is called respiration. Okay, is this clear? And it also includes breathing, including breathing. And breathing is what? The process of inhalation and exhalation is called breathing. And what is inhalation and what is exhalation? In so simple word, inhalation is what? Inhalation was what? The process of inhale oxygen. And what is exhalation? The process of
एक्सेल, एक्सेल CO2 एंड मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब एक्सेल मतलब एक्सेल आउट, बाहर निकालना, और इनहेल मतलब अंदर लेना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया को हम ब्रीदिंग कहते हैं। एंड नॉट ओनली ब्रीदिंग, देयर इज द obtain of energy, there is the obtain of energy is by the combination of oxygen and glucose is also called respiration, including breathing. Okay, this is clear? Is this clear? What is the respiration? अब हम देखेंगे कि how many type of respiration, how many type of respiration. What? Can you raise this? Okay, there is no time. That's why. Okay, ध्यान से सुनिए, बस ध्यान से सुनिए और लिखते जाइए, ठीक है ना। अब जरूरत पड़ेगी तो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ओके ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, सॉरी हाउ मेनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। देयर इज एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान दीजिएगा, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, aerobic respiration is what? Aerobic respiration is what? The process of produce energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration, and anaerobic respiration is what? The process of produce energy in the absence of or in the lack of oxygen, that is called anaerobic respiration. Is this clear? What is aerobic respiration and what is anaerobic respiration? The presence of oxygen is called aerobic respiration, and the produced energy in the absence of or lack of oxygen is called anaerobic respiration. Can I write? The process, let us see here, the process of produce energy, ध्यान दीजिएगा बातों पे, produce energy in the presence of what? Oxygen. Sorry. Is called aerobic respiration. Okay. Aerobic respiration. Okay. And the process in which, the process of produce energy, ध्यान दीजिएगा, मैं कवर कर ले रही हूँ। अच्छा, the process of produce energy in the, अब सही है, in the absence or lack of oxygen is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration, the process of produce energy in the absence or in the absence or lack of oxygen is called anaerobic respiration, and the process of produce energy in the presence of oxygen is called aerobic respiration. Okay, now let us see, अब हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है, हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है ना। सॉरी, इरेज कर दूं? ओके, बस इसी को इरेज कर रही हूँ। ओके, क्योंकि आगे आपको देखने में मतलब समझने में आसान रहेगा, इजी रहेगा, क्योंकि आगे हम ये देखेंगे कि जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपको पायरुवेट में और एनर्जी में, एंड दिस पायरुवेट आर कन्वर्टेड इनटू
converted into different part in the presence of oxygen, in the absence of oxygen, and on the lack of oxygen. Okay, and in which this is happened and occur, we can see one by one. Okay, तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था, इन एब्सेंस लिख देते हैं, सॉरी इन प्रेजेंस, ताकि आपको ध्यान रहे, बस मैं यहाँ पे 1 पॉइंट नोट डाउन कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिएगा इन एब्सेंस ऑफ और ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो अब आपको ध्यान में रहेगा। नाउ लेट अस सी हियर, ग्लूकोज, ग्लूकोज इज व्हाट, फूड। अब ये कन्वर्ट होता है किसमें, पायरूवेट में, दिस इज कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट। ओके, प्लस एनर्जी, प्लस एनर्जी, इज दिस क्लियर। अब हम देखेंगे, पहले हम यहां देखेंगे। ओके, in the this is converted into in absence of oxygen. Okay, in absence of oxygen, in the absence of oxygen, pyruvate converted into ethanol. Okay, दिखाई तो दे रहा है ना आपको, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, ऑफ कोर्स एनर्जी। ओके, एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, देयर इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हुआ, ईस्ट, लाइक ईस्ट। आप देखते हो कि जब खमीर वगैरह हम बनाते हैं तो वो क्या होता है, वेरी दिस बिकम्स वेरी पफी एंड ब्रेड्स आर बिकम वेरी पफी because of presence of CO2. Okay, and if their pyruvate are changed and converted into ethanol or CO2, that's why the breads are become very puffy and khamir are become very puffy. This is the example of in the absence of O2. Now next thing is in the lack of oxygen. Okay, in the lack of oxygen, what has happened, pyruvate, this pyruvate are converted into lactic acid and energy are released. एनर्जी यहाँ भी रिलीज हो रहा है, एनर्जी यहाँ भी रिलीज हो रहा है, बट देयर इज अ लैक ऑफ absence of energy, absence of oxygen, energy are released during absence of oxygen, and there is energy also released in the lack of oxygen. Okay, let us see here what is the example of in the lack of oxygen. Muscle cells. Okay, what is happened during when lactic acid are released more and more in our muscle cells? What's happened? Cramps. This causes cramps. Where? मसल सेल्स. ओके, मसल सेल्स में क्रैम्प्स होता है। जैसे कि आप देखते हो ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज ड्यूरिंग रनिंग, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, मतलब सांसें जो ब्रीदिंग होती है वेरी फास्ट हो जाती है। दैट्स वाई जो ऑक्सीजन होता है प्रॉपर वे में हमारे मसल सेल्स में पहुंच नहीं पाता है। Because of this, there is a lack of oxygen that's causes cramps. हाँ, मसल पेन होता है, क्रैम्प्स होता है, जो मतलब मसल्स में खिंचाव होता है और एक अलग सा पेन होता है, that's called cramps. This is because of excess of lactic acid released inside the muscle cells.
Okay, and why this lactic acid release more and more in muscles is because of lack of oxygen. When during exercise, during running, the lack of there is the lack of oxygen are found in muscle cells and this causes cramps. Okay, क्योंकि उस समय में क्या होता है, प्रॉपर वे में ऑक्सीजन हमारे मसल्स इसमें पहुंच नहीं पाता है एंड क्रैम्प्स होता है. दिस इज क्लियर. नाउ come to the point, what has happened in the presence of oxygen. Okay, this respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration. हमने ये देख लिया था कि रेस्पिरेशन जो है वो दो पार्ट में बांटा गया, मतलब डिवाइड हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. एंड यहाँ हमने देखा था, सॉरी यहाँ हम देखे थे कि फूड जो मतलब ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज आर कन्वर्टेड इनटू पायरूवेट and energy, and this pyruvate are converted into ethanol and carbon dioxide and energy in the absence of in the absence of oxygen, and this which is found in yeast, and this pyruvate are also converted into lactic acid and energy which is found in muscle cells, and what is cramps are also clear in this. Now we are study come to the next point. In the presence of oxygen, what happened in the presence of oxygen? These pyruvate are converted into H2O plus CO2 plus energy. Is this clear? These pyruvate are converted into H2O, CO2 and energy. This is occurring mitochondria. Okay, these are occur into mitochondria, and this is called cellular respiration, because this respiration are occur into cells. Why it is called cellular respiration? Okay. Okay. Now we come to the next point. We are going to study what is human respiratory system. अब हम बात करेंगे किसका? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. हमने देख लिया कि रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. फिर जो फूड है वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरूवेट में कन्वर्ट होता है in the presence of oxygen, and in the presence in the lack of oxygen, and in the absence of oxygen. This is what has happened there. Okay, now all topics are clear. Okay, तो हम बात करेंगे हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. पहले हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज nostrils. This nasal cavity are found here, and this is open into pharynx, and after that in larynx, and after larynx there are
trachea are found, and this trachea are divided into two parts which are open into both lungs. ड्राइंग मेरा खराब नहीं है मार्कर की वजह से. एंड दिस divided part are called bronchi, and this bronchi are divided into so many branches which is called bronchioles. Okay, which is called bronchioles. उसके बाद क्या है ना कि मैं ना सिर्फ एक ही में इसी में फिगर आउट करूँगी, इसमें नहीं करूँगी, टाइम ज़्यादा ले लेगा. बस मैंने ऐसे ही रफ स्केच बना रखा है, आप लोग समझ लीजिएगा. एंड दिस ends of this bronchioles are called alveoli. Ends of this bronchioles are called alveoli. Okay. अब देखिए इसमें ये क्या आपको नॉस्ट्रिल्स है, ये क्या है नेसल कैविटी है, ये क्या है फेरिंग्स है, ये लैरिंग्स है, ये क्या है आपको ट्रैकिया, ये क्या है ब्रोंकी. एंड दिस ब्रांचेज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स. हाँ लिख लीजिएगा ब्रोंक्यूल्स. एंड दिस बलून लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड alveoli. तो हम देखेंगे कि यहाँ हमने फिगर में देखा. अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ एयर कंडक्शन. सीक्वेंस ऑफ एयर कंडक्शन मतलब कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर जाता है और फिर कैसे हम फिर एक्सेल करते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो वो कैसे सीक्वेंस वो मतलब फॉलो होता है. तो इसे आप कह सकते हो कि सीक्वेंस ऑफ एयर कंडक्शन, या आप कह सकते हो कि व्हाट इज द पैसेज ऑफ एयर कंडक्शन. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल air is entered through nostril. Okay, nostril is what? nose. आप देखते हो कि जो आपका नोज है, मतलब हमारा नोज है या आपका नोज है, तो उसमें हेयर लाइक स्टिक टाइनी मतलब हेयर होते हैं, टाइनी हेयर आर फाउंड, एंड दिस एयर एंड दिस ऑक्सीजन आर फिल्टर इनसाइड द नोज. ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नोज़ से हम लोग मतलब नाक से हम लोग सांस लेते हैं और जो एयर इंटर करता है नाक में, वो सबसे पहले वो टाइनी हेयर के थ्रू फिल्टर हो जाता है. मतलब कि फिल्टर क्या होता है, मतलब कि जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं हमारे नोज़ में फिल्टर हो जाते हैं. एंड देन दिस फिल्टर एयर इज गोज टू द इंटर टू द nasal cavity. Okay, nasal cavity से क्या होता है कि ये pharynx में जाता है, pharynx से कहाँ जाता है larynx में, larynx से कहाँ जाता है trachea. Of course trachea, there is the two pipe are found inside the throat. हमने आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमन में ही पढ़ाया था कि there is two pipe are found, one is the wind pipe and second is food pipe. तो food pipe के बारे में आपने उसमें पढ़ लिया था, ठीक है ना, हमने उसमें पढ़ा था, डिस्कस किया था. एंड दिस trachea is also called wind pipe. This is a trachea, and in trachea there is the C-like structure are found. Okay. Why this seal-like structure are found, and this is help to collapse it. Cartilage are also found here, iron cartilage. That's why this is helps to collapse helps in collapse of trachea. जैसे बलून होता है, तो बलून में जब हम एयर पंप करते हैं तो क्या होता है, बलून फुल जाता है ना, और जब उसको सक करते हैं तो वो क्या होता है, पिचक जाता है. ओके,
तो जस्ट लाइक दैट जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो विंड पाइप होना चाहिए वो मतलब पिचक जाना चाहिए, और फिर से जब एयर लेते हैं हम इनहेल करते हैं तो वो फूलना चाहिए। तो ऐसा ना हो, इसमें ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर जो होता है उसको कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करता है, तो वो कोलैप्स नहीं होता है। ओके, नाउ आफ्टर ट्रैकिया दिस एयर इज इंटर इनटू ब्रोंकी। ब्रोंकी कहाँ पे? ब्रोंकी। And after bronchi, this is enter into bronchioles, 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 and after bronchioles, this is enter into alveoli, alveoli. This is the main point. Okay. Now, nostril, यहाँ से क्या होता है, एयर इंटर करता है, उसके बाद नेसल कैविटी में जाता है, नेसल कैविटी से फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स से लैरिंग्स में जाता है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में आता है, एंड ट्रैकिया आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स इनसाइड विच इज ओपन इनटू टू लंग्स. This is called bronchi, and bronchi are divided into many branches which is called bronchioles, and end of this bronchioles there are balloon like structure and grapes like structure are found. This is called alveoli. Okay, this is called alveoli. अब देखिए हम alveoli के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे. What is alveoli? Alveoli क्या है? The structural and functional unit of lungs. ठीक है, ये क्या होता है? alveoli क्या होता है? The structural and functional unit of lungs. Structural and functional unit of lungs. Just like that, similarly the cell chapter में आपने पढ़ा होगा कि cell is the structural and functional unit of life. मतलब कि सेल का जो होता है वो जीवन का मतलब लाइफ का जीवन का जो होता है वो रचनात्मक और क्या होता है कार्यात्मक इकाई है. That's like okay. Similarly alveoli the structural and functional unit of lungs. ये भी क्या है? लंग्स का कार्यात्मक और मतलब रचनात्मक इकाई है. तो यहाँ पे हमको इतना कुछ जानना नहीं है, हमें मेनली क्या जानना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली. ओके, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एल्वियोली. तो फंक्शन देखेंगे हम. इसका फंक्शन क्या है? प्रोवाइड द एल्वियोली प्रोवाइड surface area for exchange of gases. Okay, exchange of gases. हाँ दिख रहा है, नहीं मैंने देख रही थी. ओके, तो क्या होता है कि जो इसका फंक्शन क्या है कि एल्वियोली में जो मतलब गैस होता है, गैस एक्सचेंज होता है. कौन सा गैस एक्सचेंज होता है? जो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लेते हैं, वो क्या होता है कि जो एयर कंडक्शन का जो मतलब सीक्वेंस है, जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से होके वो एल्वियोली तक जाता है. ठीक है ना, गैस वहाँ जाता है. उसके बाद क्या होता है कि जो ये एल्वियोली है, ठीक है ना, एल्वियोली के चारों तरफ क्या होता है? ब्लड सेल्स कनेक्टेड होता है. कौन सा क्या होता है? ब्लड सेल्स आर कनेक्टेड टू द एल्वियोली. तो ब्लड सेल्स क्या करते हैं? एल्वियोली से जो गैस होता है मतलब ऑक्सीजन होता है उसको क्या करते हैं? ऑब्जॉर्व करते हैं. ऑब्जॉर्व करके उसको क्या करते हैं? जो ह्यूमन बॉडी है मतलब पूरे बॉडी पार्ट में जो सेल्स हैं, पूरे सारे सेल्स जो बॉडी पार्ट्स में हैं वहाँ तक उनको कंडक्ट करता है. किसके थ्रू? ब्लड वेसल्स के थ्रू. ठीक है, और वो ब्लड वेसल्स फिर क्या करते हैं? पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब लेते हैं और उसको पुट करते हैं. कहाँ पे? उसको एल्वियोली में पुट करते हैं. और एल्वियोली क्या करता है? उसको पंप आउट करता है. कहाँ पे? ब्रोंकियोल्स में. ब्रोंकियोल्स क्या करता है? ब्रोंकस में. और फिर ब्रोंकी के थ्रू वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वो क्या होता है? हमारे नॉस्ट्रिल तक आता है और हम उसको क्या करते हैं? एक्सहेल आउट करते हैं. दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज आर डन बाय एल्वियोली. ओके, दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज.
उम्मीद करते हैं कि आपके मतलब आपको सारा ये टॉपिक है समझ में आया होगा क्लियरली. व्हाट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ alveoli एंड ऑल दैट. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट. जल्दी से हम ये देख लेंगे कि रेस्पिरेशन प्लांट में रेस्पिरेशन क्या होता है. ओके, व्हाट इज द रेस्पिरेशन इन प्लांट. सिमिलरली there is also an organ a site are found where the exchange of gases which provide the surface area for exchange of gases inside the plant. Respiration in plant. What is the respiration in plant? There is two terms. Photosynthesis बताएंगे कि क्यों हमने ऐसा लिखा, एंड रेस्पिरेशन अभी बताते हैं. दोनों में डिफरेंस क्या है अभी बता रहे हैं. हम यहाँ पे इनसाइड द प्लांट देयर इज द रेस्पिरेशन अकर थ्रू स्टोमेटा. व्हाट इज द स्टोमेटा? देयर आर a small pore and opening are found in inside the leaves are called stomata. And respiration occur through stomata inside the plant. हम थोड़ा सा स्टोमेटा का फिगर देखेंगे. ये विनसेप्ट में होता है. एक सेकेंड, ये क्या होता है? बीन शेप में होता है. ठीक है, ये क्या है आपको? क्लोरोप्लास्ट है ना. स्मॉल ओपनिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट हियर. सो मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन. ये क्या है आपको? गार्ड सेल है. बताते हैं, अभी बताएंगे. पूरा पहले फिगर बना ले, उसके बाद सारे पार्ट्स का नाम भी हम लिखेंगे यहाँ पे, आप देख पाएंगे. तो ये एपिडर्मल सेल है. ये गार्ड सेल है. दिस इज कॉल्ड गार्ड सेल. दिस इज एपिडर्मल सेल एंड दिस ओपनिंग आर कॉल्ड स्टोमेटोपोर and this is chloroplast. This is chloroplast. Okay. Okay. Now let's see here. रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में देयर इज द साइट ऑफ, दिस इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ओके, क्या होता है? CO2 इंटर करता है और O2 का इसको कोई काम नहीं है तो क्या करता है? एक्सेल कर देता है. ठीक है. अब देखिए फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि CO2 कंबाइंड विथ H2O and makes glucose. In the presence of sunlight and chlorophyll. क्लोरोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. ओके, एंड O2 एंड ATP रिलीज. ओके, अब यहां देखेंगे रेस्पिरेशन में, है ना. रेस्पिरेशन में क्या होता है? सेम प्रोसेस उल्टा होता है. ओके, यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 are breakdowns and combines with O2 and produce CO2 plus H2O plus energy. Okay, energy are produced here.
ओके अभी इसमें क्या होता है कि जो मतलब ग्लूकोज क्या होता है, ये टूटता है और क्या बनाता है, CO2 और H2O बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। बट वहीं फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सिर्फ इसी का यही प्रोसेस उल्टा होता है। उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं और O2 और ATP रिलीज करते हैं, ठीक है ना, एनर्जी रिलीज करते हैं। दिस इज द respiration in plant and gaseous exchange are occur in the stomatal pore. हाँ, this is और ये गार्ड सेल जो होता है, गार्ड सेल का फंक्शन क्या होता है, जो स्टोमेटल पोर है उसको ओपन और क्लोज होने में हेल्प करता है। दिस हेल्प्स टू ओपन एंड क्लोज द पोर्स ऑफ स्टोमेटल पोर। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ I hope this respiration topics are very clear in this lecture. What is the respiration in plant and what is the respiration in animals, and what is what is the human respiratory system and how work alveoli and all that. So thanks to all of you. Thank you for watching my my lecture, and please have a good day. Thank you to all of you.